today let's start with chapter number first, nutrition in plants. So in this chapter, I will tell you about how do different plants get their nutrition. First of all, I will tell you about agriculture. So we all know that food is one of the basic necessity of life. फूड क्या है हमारी? फूड हमारा एक बेसिक नेसेसिटी है. वी ऑल नीड इट. हमें सब कुछ की जरूरत पड़ती है. सो व्हाट वी नीड इट टू रिमेन और स्ट्रॉन्ग, रिमेन हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग. सो ओनली ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना अपने आप बनाते हैं. किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. So plants and other living organisms, they cannot make their food. They are dependent upon other plants and animals for their food. So for century, human beings have been eating different parts of plants over the time. And they learned how to sow the seeds and cultivate it into a new plant. To produce food on a large scale, management, distribution, and which is very crucial. So we have autotrophs and heterotrophs. Autotrophs क्या होते हैं? जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं. And heterotrophs, that they are dependent upon another to prepare their food and depend on other plants. Right? Next is agriculture. It comes from Latin word ager, which means field. और cultivate का मतलब क्या होता है? आपका cultivation करना. Right? So we can, the agriculture is the science of dealing with the production of plants. ठीक है, एक तरीके की साइंस है जो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स में डील करती है फॉर ह्यूमन बींग्स. राइट? So we can say that we have crops and their types. We have different types of crops. Similar plants are grow. देखो, according to the climatic condition हम क्या करते हैं? Plants को grow करते हैं. Right? So we can say that we can grow and cultivate at one place on large scale. So we can say that crop may be of different kinds. Crop अलग-अलग तरीके के होते हैं. So in India, it is a land of diversity. Here, according to the different climatic condition, we see two different types of crops. We have Kharif crop and Rabi crop. First is Kharif crop, which is grown in rainy season in the month June to September. जैसे आपका paddy हो गया, rice हो गया, maize हो गया, groundnut, cotton, they are type of Kharif crop. Right? यहाँ पे आपको बहुत plenty of rainfall चाहिए होती है for the growth. Then we have Rabi crop, the crop जो आपकी विंटर सीजन में होती है मंथ ऑफ अक्टूबर टू मार्च. राइट? लाइक व्हीट, पी, मस्टर्ड, बार्ले, लाइन सीड. ये कौन सी क्रॉप है आपकी? राबी क्रॉप. देन वी हैव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. सो वी कैन से देयर आर many basic steps in crop production which are followed by particular sequence. So air, water and sunlight, what are these? These are the basic necessity of crop production. So here you can say that modern techniques, हम इसमें modern techniques का use करते हैं. Like we have proper use of manure. जो manure है हम उसको properly use करेंगे, fertilizer को use करेंगे, pesticides को use करेंगे, and we will do different types of agriculture practices in this. So we can say that the activities that farmer follow in particular sequence over a period of time. एक जो period of time होता है, जो practice हम follow करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? It is known as agriculture practices. So in a sequential steps, I will tell you how you will grow your crop. First of all, what we will do, we will prepare our soil. हम soil को prepare करेंगे, seeds और उसका selection करेंगे, sow करेंगे, replenishment करेंगे nutrition of soil का, irrigation, protection from weeds, harvesting, threshing, winnowing and storage. ठीक है, उसका हमने काटा, उसको साफ करा, उसको हम क्या करेंगे? Store करके रख देंगे future use के लिए. Now, first of all, what you will do, you will prepare a soil and you will prepare, for preparation of soil, it involves two steps. What are these? Plowing and leveling. Plowing क्या होता है? जिसमें आप lose करते हो और soil को turn करते हो. This is done by using a plow that is drawn by a pair of bulls. आपने देखा होगा कभी अगर आप गांव वगैरह में गए होंगे तो बुल होते हैं, एक पेयर ऑफ आपका लेवल को वो कैरी करते हैं और खेत को जोतते हैं. राइट? Now we have different modern techniques. ये सब तो ट्रैक्टर से हम करते हैं. So plow is a tool that is used for tilling the soil. एक pointed tip होता है. देखो ऐसा pointed tip होता है, इसका handle होता है, ये plow share होता है, ये plow shaft होता है. Right? Plowing is important because of following reason. सबसे पहला रीजन क्या है कि ये soil particles को lose करता है जिससे पानी को hold करके रख सके. भाई अब आप क्रॉप उगा रहे हैं तो उसके लिए आपसे इसकी नीड पड़ती है वाटर की, और उस वाटर को कौन एब्जॉर्व करता है? रूट्स एब्जॉर्व करती है. सो जो लूज सॉइल पार्टिकल्स है, देन
they have more air spaces that has the root of crop to breathe, जिससे वो क्या कर सके, अच्छे से ब्रीथ कर सके, राइट. लूज सॉइल मिक्सेस वेल विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये पेनिट्रेट करता है डीप इनटू द लेयर्स ऑफ सॉइल, और आप देखेंगे ये ग्रोथ को, जो यूजफुल सॉइल माइक्रोब्स है उनको क्या करता है, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है, राइट. इट हेल्प्स टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड. आपने देखा होगा बहुत बार जब हम क्रॉप उगाते हैं तो आप देखते हैं कि फील्ड में कुछ अनवांटेड आपको अनवांटेड प्लांट्स देखने को मिलते हैं, उन्हें हम वीड्स कहते हैं, राइट. फिर हम उसको उखाड़ते हैं, फिर हम लेवलिंग करते हैं, भाई हमने प्लो कर लिया, सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, and afterward lump should be crushed before sowing the seed. It process of crushing the big lumps of soil, और उसको जब हम evenly स्प्रेड करते हैं उसको हम लेवलिंग कहते हैं. ये आपकी वुडन और आयरन लेवल के थ्रू होती है, राइट. ये हेल्प्स करती है इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन ड्यू टू विंड एंड वाटर. इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉगिंग, ये वाटर लॉगिंग में हेल्प करती है. इफ यू हैव सोइंग एंड सिलेक्शन, सो लेट्स स्टडी अबाउट सोइंग एंड सिलेक्शन ऑफ सीड्स. इसमें क्या होता है, क्वालिटी ऑफ क्रॉप हार्वेस्टेड डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ सीड्स सोन. जो सिलेक्शन होता है बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड्स का, आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रायोरिटी जो दी जाती है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी को दी जाती है. क्यों, जिससे अगर हम क्रॉप उगाए तो आगे वो हमारे लिए यूजफुल और हम उसे अच्छे से बेच सकते, राइट. सो दिस इज एन एक्टिविटी गिवन टू यू. बाय दिस प्रोसेस यू विल सेपरेट गुड हेल्थी सीड्स फ्रॉम डैमेज्ड वंस. सो ये प्रोसेस है, यू कैन रीड इट, right, you can understand it. So the process of placing the seeds in the soil, एक right depth और interval पे, देखा है जब हम क्रॉप लगाते हैं तो उसको हम सो करने के लिए क्या करते हैं, उसको एक प्रॉपर डेप्थ जिससे वो अच्छे से ग्रो कर सके. सोइंग शुड बी डन केयरफुली, जिससे आप प्रॉपर डेप्थ और डिस्टेंस जो है, भाई जब प्लांट ग्रो तो वो प्रॉपरली ब्रीथ कर सके, तो उसको एक प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाते हैं. So it should be done at proper depth because if seeds are placed too deep inside the soil, what will happen? The roots may not be able to respire. और बहुत बार क्या होता है, जब वो respire नहीं कर पाती हैं तो the crop dead. So it should be done at the proper interval because placed too far, the field space would be wasted. अगर वो ज्यादा ही पास हो जाता है तो क्या होता है, they are not able to, वो overcrowded हो जाता है और क्रॉप जो है वो आपका अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, राइट. नेक्स्ट इज मैथड ऑफ सोइंग. देखो डिफरेंट मैथड्स है, एक ब्रॉडकास्टिंग वे है, आप सीड ड्रिल का यूज करते हो, डिफरेंट मैथड्स है. सो फर्स्ट इज व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग. नाउ यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ऐसे स्कैटर करते हैं, भाई किसी चीज को लेकर ऐसे करके फैक्ट स्कैटर्ड करते हैं सीड्स को, राइट. नेक्स्ट इज यूजिंग सीड ड्रिल. एक फनल शेप बाउल होता है, उसमें ट्यूब होती है, उससे आप क्या कर रहे हैं, सीड ड्रिल को मेंटेन करके एक स्पेसेस पे, प्रॉपर स्पेस, आप देखेंगे उसमें एक प्रॉपर स्पेस होता है, जैसे जैसे आप चलाएंगे वो सो होता रहेगा. नेक्स्ट इज रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. अब आप न्यूट्रिएंट्स को कैसे रिप्लेनिश कर सकते हैं. सो सॉइल प्रोवाइड्स एसेंशियल मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप. Crop plants are use their nutrients for their growth. As a crop is harvested, what it takes, it takes some of the available nutrients. और जो continuous growing of crops है वो soil को कैसा बनाती है, deficient बनाती है in certain nutrients, और soil loses its fertility and crops start failing. जैसे उसकी fertility lose हो जाती है तो आप देखेंगे कि जो आपकी crop है वो गिरने लग जाती है, वो खराब हो जाती है. Now next is, so these essential nutrients are replenished. Now manure or fertilizer. Use of manure, इसको हम manuring कहते हैं. जो substance होते हैं वो soil की fertility को क्या करते हैं, enhance करते हैं. Then we have manure, which is organic compound. It is obtained by decomposition of plants and animals. इसको हम basically compost कहते हैं. आप देखते हैं बहुत बार क्या होता है, जब हम crop को grow करते हैं तो हम compost डालते हैं. So compost is prepared by decomposition of farm and domestic organic waste material. जैसे animals excreta डालते हैं, fecal matter of human being, sewage wasted, weeds, dry leaf. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं. ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को और क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैन्योर. ये किस में रिच होता है, इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में. Now let's study about the advantages of manure. What are the advantages? पहली बात तो क्या है, सॉइल को पोरस बनाता है. पोरस क्या होता है, जिससे जो गैसेस एक्सचेंज होता है सॉइल में वो इजीली हो जाता है. Then
इट इनहेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ज्यादा होती है, भाई जब पानी रहेगा उसमें तभी तो वो ग्रो करेगा. Improves the texture of the soil, increase number of soil friendly microbes, ह्यूमस ऐड करता है सॉइल में, राइट, डज नॉट कॉज वाटर पॉल्यूशन, इट इज नॉट एक्सपेंसिव, और आप इसको इजिली वेस्ट से प्रिपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर. ये मैन मेड होते हैं, मैन मेड केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं, राइट, इन विच इज रिच इन एनी पर्टिकुलर मैटर. कोई भी एक पर्टिकुलर आपका न्यूट्रिएंट होगा उसमें रिच होगा. जैसे आपका यूरिया हो गया, पोटास हो गया, सुपर फोस्फेट हो गया, ये सब नाइट्रोजन रिच है, पोटेशियम और फॉस्फेरस रिच है. दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दे आर एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय द प्लांट्स. दोनों, चाहे वो मेन्योर हो चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, दोनों को हम यूज करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. दे ऑल्सो हार्म द सॉइल बाय मेकिंग इट पोरस. मैन्योर जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, और क्या प्रमोट करते हैं, माइक्रोब्स की ग्रोथ को. Here are differences also given to you about the manure and fertilizer. ये ऑर्गेनिक होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जो फैक्ट्रीज में बनते हैं. जो मैन्योर्स होते हैं वो नेचुरली होते हैं, ये रिच इन ह्यूमस होते हैं, दे आर नॉट रिच इन ह्यूमस. दे आर नॉट रिच इन इनऑर्गेनिक कंटेंट्स एंड दे आर रिच इन इनऑर्गेनिक कंटेंट्स. मैन्योर्स के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, एंड फर्टिलाइजर दे आर नॉन बायोलॉजिकल, इनमें वाटर पॉल्यूशन हो जाती है. दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, दे आर कॉस्टली, need a bigger area for preparation and storage, they can be easily stored and handled. They are insoluble in water, readily absorbed, they are soluble in water and they are readily absorbed in the soil. Next is natural method to restore soil fertility. Now I will tell you about some natural method जिससे हम क्या करते हैं, soil की fertility को restore कर लेते हैं. जैसे आपका crop rotation हो गया, ये method है growing different crops alternately. आप क्या कर रहे हो, अल्टरनेटिवली क्या कर रहे हो, डिफरेंट क्रॉप्स को एक ही फील्ड पे ग्रो कर, जिससे उसकी फर्टिलिटी भी क्या हो जाए, बढ़ जाए, राइट. जैसे आपने कुछ लेग्यूमिनस क्रॉप उगाई, पीज हो गया, सोयाबीन हो गई, और नेक्स्ट सीजन में आपने उसको रिप्लेनिश करा, एंड आफ्टर दैट यू हैव चेंज द क्रॉप एंड यू हैव यूज डिफरेंट क्रॉप. नेक्स्ट इज फैलोइंग. व्हाट इज फैलोइंग? So in this method, what will happen? Land is left uncultivated for one or more season. The fallow land regains the nutrients through the decomposition, जिसमें जो आपके plants और animals का remains है वो जो action of microbes है उसके through वो work करता है. Now next cropping in this method, 2 or more crop grow. इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा crop same field पे क्या करता है, grow करते हैं, right? Like we have wheat or rye that can be grow all together in the same field. Cotton and groundnut, they are grown together. You can grow, these are the leguminous crop. Irrigation, you can know that water is essential for all living things. Crops के लिए भी ये क्या है, basic necessity. So we can say that the nutrients are also absorbed from the soil along with water. जितने भी nutrients हम supply करते हैं, they get dissolved in water, and water also protect plants against frost or hot air currents. So what happened then? The supply of water to the crop plant at regular intervals, जब हम किसके थ्रू करते हैं, sources other than waves, को irrigation कहते हैं. In India जो farmers होते हैं, they are mostly depend upon rain for irrigation, right? Also the need of water varies from plants time to time. देखो जो need of water, हर एक plant की जो need होती है पानी की वो vary करती है, वो अलग अलग होती है. भाई किसी को ज्यादा पानी चाहिए, किसी को कम पानी चाहिए. So we use different types of irrigation system. First we have, let's study about the sources. Sources of irrigation क्या हो सकते हैं, lake, seas, ocean, well, tubewell, ponds, ये क्या है आपके sources of irrigation. Then let's study about the methods of irrigation. We have different methods. First of all, I will tell you about the traditional method and then modern methods. So what are traditional methods? Which are used by human labor or cattle for lifting water. The water from canals, lakes or wells or lakes is brought to the field for the purpose of irrigation, like we have moat, Dekli, Rahat, chain pump. These are the different methods, traditional method. Let's study about the modern methods of irrigation. जैसे आपका sprinkler system हो गया. This method are all the expensive than traditional one, but help in using water more efficiently or economically. Like we have drip system. इसमें हम क्या करते हैं, drip by drip water को plants में करते हैं. So ये very effective होता है. It is
मैंने आपको बताया इसमें वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम पानी प्लांट्स को देते हैं। देन स्प्रिंकलर, इसमें आपने देखा होगा सैंडी एरियल और चाहे अनइवन लैंड हो वहां पे ऐसे स्प्रिंकलर्स लगाए जाते हैं और वो पानी उड़ उड़ के जाता है, आपको ऐसा लगता है जैसे वो क्या कर रहा है, रेन कर रहा है। देन वी हैव वाटर लॉगिंग, while irrigating the field it is very necessary to maintain proper drainage of water. So excessive irrigation क्या cause करती है, water to stand in field, and this condition is called water logging. Now protection from weeds, भाई हमें weeds से protection चाहिए, तो for that unwanted plants हम cultivate करते हैं crop के साथ, so they are called weeds. removal of weeds, भाई जब weeds हो जाते हैं, unwanted plants आते हैं, उनको हमें remove भी करना है। सो why it is necessary, क्योंकि ये जो ग्रोथ है क्रॉप की वो क्या करते हैं, एक्सेक्ट करते हैं, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं, एंड सम ऑफ द स्पीशीज मस्ट बी पॉइजनस, जो हार्मफुल होते हैं एनिमल्स के लिए। द वीड्स इनकरेज स्प्रेड ऑफ पेस्ट विच आर हार्मफुल फॉर द क्रॉप एज वेल एज। सो वी कैन से दैट जो प्रोसेस होता है आपका रिमूविंग वीड्स फ्रॉम क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। सम कॉमन जो स्पीशीज होते हैं वो है आपका एमेर्थन्स, जैसे चौलाई, ठीक है, चलाई हम खाते हैं, खुरी हो गया, बथुआ जिसको हम सेनोपोडियम कहते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट द डिफरेंट टू मेथड्स, लाइक वी हैव मैकेनिकल मेथड, वीड्स कैन बी रिमूव्ड मैन्युअली, आप हाथ का यूज करके भी, हैंड्स का यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो, और यू कैन यूज खुरपी। प्लोइंग ऑल्सो अप्रूव्स मोस्ट ऑफ द वीड्स, सो इट कैन बी हेल्पफुल इन रिमूविंग मोस्ट ऑफ दैम, जिससे आप क्या कर सकते हो, आप उनको रिमूव कर सकते हो। देन वी हैव केमिकल मेथड विच आर स्प्रेड ऑन वीड्स टू डिस्ट्रॉय देम, उनको हम वीडीसाइड्स कहते हैं। आप क्या कर सकते हैं, 2,4-D आता है, आप उनको स्प्रे कर सकते हो और जितने भी ये वीड्स हैं वो क्या होते हैं, उनको आप हटा सकते हो। नाउ प्रिवेंशन वाइल स्प्रेड, देखो वीडीसाइड है तो ये पॉइजनस, तो आपको कुछ प्रिकॉशंस भी लेने हैं, लाइक वी शुड, ग्रेन शुड बी वॉश्ड थोरली बिफोर कंजप्शन। देखो हम कुछ भी लेता है, जो भी आप ग्रेन्स वगैरह खा रहे हो उसको आपको प्रॉपरली वॉश करना चाहिए, राइट। सो फार्मर शुड कवर देयर नोजेस, जब भी वो स्प्रे कर रहे हैं उसको, तो अपने नोजेस को, माउथ को क्लोथ से, आपने देखा भी होगा बहुत बार अगर आप गए होंगे कभी गांव वगैरह में, तो जब फार्मर स्प्रे करते हैं तो अपने पूरे मुंह को बांध के रखते हैं, राइट, बिकॉज दे आर पॉइजनस। नाउ बायोलॉजिकल मेथड, इंसेक्ट्स और सम अदर ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम एंड स्पेशली डिस्ट्रॉय वीट प्लांट्स आर इंट्रोड्यूस इन द क्रॉप फील्ड, इसको आप बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपका है प्रिकली पियर कैक्टस। देन वी हैव हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। सो हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग द मैच्योर क्रॉप फ्रॉम द फील्ड, जैसे भाई आपने क्या करा, हार्वेस्ट करने का टाइम आया, आपने उसको कट करा विद द हेल्प ऑफ सिकल मैनुअली और मैकेनिकली विद द हेल्प ऑफ हार्वेस्टर। So after harvesting, grains are separated from chaffs. The process of separating grains from chaff को क्या कहता है, थ्रेशिंग। आपने देखा होगा ऐसे छन्ना सा होता है, या फिर ऐसे करके वो क्रॉप को मारते हैं, इससे क्रॉप उस पे से गिर जाता है, बचे हुआ उसको आप क्या कर सकते हो, फेंक सकते हो। सो स्पेशल मशीन कॉल्ड कंबाइन इज ऑल्सो यूज, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। फाइनली क्या होता है, जो ग्रेन होता है वो सेपरेट हो जाता है सैप से, किस प्रोसेस से, विनोइंग के प्रोसेस से। देन वी हैव स्टोरेज, उसके बाद हम क्रॉप को स्टोर करके रखते हैं। सो द क्रॉप विच आर हार्वेस्टेड नीड टू बी स्टोर्ड विद ग्रेट केयर सो दैट इट लास्ट्स टिल द एंड ऑफ नेक्स्ट हार्वेस्टिंग सीजन। इट शुड बी स्टोर्ड इन सच अ वे, आप इस तरीके से स्टोर करके रखेंगे सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पेस्ट। भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, पेस्ट, उनसे क्या कर सकते हो, उनको रोक सकते। नाउ सिंस क्रॉप विच आर हार्वेस्टेड हैव लॉट ऑफ मॉइस्चर इन देम, दे हैव टू बी ड्राई to protect them from spoil। आपको उनको बचाना है कि भाई वो स्पॉइल ना हो। सो फॉर दैट यू विल ड्राई इट इन द सन, आप उसे धूप में सुखाएंगे या फिर आप मैकेनिकल ड्रायर का यूज करके उसको क्या करेंगे, सुखाएंगे। सो आफ्टर द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड, प्रॉपर स्टोरेज अरेंजमेंट आर मेड। सो ऑन अ लार्ज स्केल ग्रेन्स आर स्टोर्ड ग्रेनरी इन ग्रेनरीज। ग्रेनरीज में आपने देखा गनी बैग्स होते हैं, या फिर और स्लॉस भी कहते हैं, उसमें पैक करा जाता है और रखा जाता है, राइट। सो सिलॉस और लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जो आपके स्टील्स के बने, ये देखो ये आपका सिलॉस ही है जहाँ पे हम ग्रेन स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पे आपको एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिलता है जिससे जो आपकी क्रॉप है उसको रोडेंट या फिर उसको आप पेस्ट कंट्रोल कर सकें। सो फूड फ्रॉम एनिमल्स, वी गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, they are also the source of food, they provide us milk, meat, egg, honey.
For obtaining that product, what do we need? The science that deals with breeding, feeding, and caring for domestic animals. What we call it? Animal husbandry. Then we have dairy farming, cattle rearing, large scale पे आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स निकालते हैं जिसको हम डेयरिंग कहते हैं. Buffaloes, cows are used here. Now we have poultry farming and meat are great source of animal protein. Birds जैसे आपके चिकन हो गया, hen हो गया, duck हो गया, इनको हम रेयर करते हैं कमर्शियल लेवल जो वहाँ पे पोल्ट्री फार्म्स हो. फिशी कल्चर मीन्स फिश इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल और इससे आपको क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है. एंड फिशी कल्चर द साइंस जो किस पे डील करती है? विद लार्ज स्केल फार्मिंग ऑफ फिश. नाउ एपीकल्चर, हनी एक सोर्स है शुगर का, मिनरल का, और जो रेयरिंग होती है हनी नीस की ऑन अ कमर्शियल लेवल उसे हम एपीकल्चर कहते हैं. राइट, that's all about in this chapter. Now we will start with the exercise of this chapter. So let's start with multiple choice question, that is MCQ. So first is kharif crop is grown in which month? It grows in June to September. There these are the staple food almost all parts of the world. देखो सारे जितने भी parts है world के सबका staple food क्या है? Grains. Next is राइजोबियम. देखो जो राइजोबियम है वो आपका क्या है? इट्स एन यूजफुल व्हाट? फंगी या बैक्टीरिया? इट्स अ यूजफुल बैक्टीरिया. नेक्स्ट इज कंपोस्ट इज अ काइंड ऑफ. कंपोस्ट क्या है? आपका मेन्योर है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग? दैट इज टाइगर. नाउ विच क्रॉप इज ग्रोन इन द स्टैंडिंग बॉटम? तो आपकी राइस. देखा ना, जहां ज्यादा पानी होता है वहां पे आप इसको ग्रो कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद बी पार्ट, दैट इज fill in the blanks. Fertilizers are what? These are chemical substances. ये क्या है? आपके chemical substances है. Next is sprinkler system. जो आपका sprinkler system है, it is very effective method for, किसके लिए है very effective method? For irrigation. Next is undesirable plants. जितने भी undesirable plants होते हैं that are grown along with main crop, they are called weeds. इनको हम क्या कहते हैं? weeds कहते हैं. Next is the quality of crop. देखो जो quality of crop आप harvest करो किस पे डिपेंड करता है? तो आपने किस क्वालिटी का सीड ग्रो करी, सोन करे, मतलब बोई है. Dash is a machine which is used in sowing seed evenly, that is seed drill. Now next type, T for true and F for false statement. First is the process of farming fish on a large scale is called pisciculture. It's true. Plants of same kinds are grown and cultivated at one place on large scale. They are called weeds. False. Pests and insects, they help in improving crop yield. ये crop yield को क्या करते हैं? Improve करते हैं. It's true. Human made chemical substances जो rich होता है inorganic nutrients में, they are called fertilizer. इन्हें हम fertilizer कहते हैं. It's false. It's true. Now let's study with the D, that is answer the one word. Now let's study about the answer in one word. Name one common weedicide. 2, 4. D. Now this is a science जो किसमें डील करती है? Animals in dealing, breeding, feeding, caring of domestic animal. That is animal husbandry. This is the most commonly grown cereal in North India, that is wheat. सबसे ज्यादा जो उगाया जाता है वो आपका wheat है. Now on a commercial scale, the grains are stored in vessels. उसे हम क्या कहते हैं? silos. मैंने आपको बताया था, उसे हम silos कहते हैं. Next is this plant is not directly sown in the field. Directly हम इसको बोते नहीं है. It is transplanted. You have to name it. That is your rice. Now subjective type question. First is short answers.
डिफाइन क्रॉप, क्रॉप क्या होता है आपको नेम. What are the two main types of crop? Kharif crop and Rabi crop. What do you mean by irrigation? Irrigation क्या होता है? What does the term apiculture means? Right? What are the various types of manures? So आपको different types of manures के name लिखने. Then long answer. Write the main steps. आपको main steps लिखने हैं जो हम फॉलो करते हैं फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप. पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, आपको ये सब बताना है. व्हाट राइट द डिटेल प्रोसेस. इरिगेशन का आपको डिटेल प्रोसेस लिखना है. एक्सप्लेन हाउ क्रॉप्स आर स्टोर्ड. आफ्टर हार्वेस्टिंग हम क्रॉप को कैसे स्टोर करते हैं. व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन. देन यू हैव टू डिफरेंशिएट. आपको मैंने भी डिफरेंशिएट दिखाया था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे मैन्योर और फर्टिलाइजर का. सेम एज इट इज यू कैन लाइक ओवर इट. राइट. Now we have completed with exercise. Now chapter is also completed. We will meet in next class. Thank you.